You are seeing the screen? Yes, sir. Okay. So let us start this class. As I told you that in this class we will basically discuss non-deterministic finite automaton. We will discuss its introduction, formal definition. We will take a comparison between the NFAs and DFAs, and then we will look at the design of NFAs. Okay. So let us start with the non-deterministic finite automaton. Non-deterministic finite automaton, in short, we call it as NFA. Okay. So before it, whatsoever machines we have discussed were also known as a deterministic finite automaton, जिसका हमने पूरे डिजाइन की प्रैक्टिस की, आपको पूरी एक प्रॉब्लम शीट दी हुई थी जिस पे आपने सब प्रैक्टिस कर रहे थे. तो दैट वाज basically deterministic finite automaton, a DFA. So in short, we call it as FA only. So if we call it FA only, then we simply mean that it is deterministic finite automaton. So now we are going to discuss NFAs. Now, each NFA accepts a language that is also accepted by some DFA. That is, NFA accept exactly the regular language just as DFAs do. जब हमने DFAs discuss किए थे, we have discussed that DFA represent is having the capability of representation of only a limited set of languages. Okay, so among all possible languages, there is a small set of languages which can be represented by DFAs. Okay, and we call those languages as the regular languages. Okay, so our NFAs also represent only the regular languages. Okay, and as this statement says that NFA accepts a language that is also accepted by DFA. यानी कि अगर हम कोई NFA बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, there will always exist a corresponding DFA. So यानी कि कोई भी नई मशीन हम नहीं बनाने जा रहे हैं, कोई भी नया कंप्यूटेशन या कोई भी नया रिप्रेजेंटेशन पावर इसमें इस NFA से ऐड नहीं होने वाला है. It will represent only those languages which are also represented by DFAs. Now question is, अगर ऐसा ही है तो why we are discussing NFAs? DFA से जब हमारा काम चल जाता है, DFA हमने डिस्कस कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो why NFA? NFA हमें क्यों चाहिए? NFAs we require because often NFAs are more succinct and easier to design than DFAs. अभी हमने DFAs डिजाइन किए, प्रैक्टिस भी की, and some simple or moderate level of type of problems in DFA we were able to solve. We have practiced. कुछ लोग अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग कम कर रहे होंगे. So अगर NFAs की हम बात करें तो NFAs को हम इसलिए चाहते हैं बिकॉज ये हमें डिजाइन करने में आसान होते हैं. And after designing NFA, we can easily convert it to the DFA. Okay, so these are the two reasons because of that we are also discussing NFAs. Okay, for the discussion of NFAs, DFAs were also required. So that's why first we have discussed the DFAs. Ultimately, we want our machines to be deterministic. So we want DFAs ultimately. Okay, but NFAs we are discussing just because they are easier to design, they are more succinct, means they are more close to our understanding about the languages. Okay, and then we can convert these to the DFA. So that's why we are also discussing NFAs. So let us have a look at NFAs. So I'm taking the first very informal definition of NFA. So a non-deterministic finite automaton, that is an NFA, is a finite automaton. It is also a finite automaton. So all the things which we have discussed for DFAs are also applicable to the NFAs with modification. अब change क्या है? Change क्या है? With modifications to allow 0, 1 or more transitions from a state on the same input symbol. DFA में आपका क्या होता था? DFA में आपका हर स्टेट से हर सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक ही ट्रांजिशन बाहर जाता था. ठीक है, यहां हमारा क्या है? वी आर अलाउइंग 0, 1 और मोर ट्रांजिशंस. यानी कि हो सकता है कोई ट्रांजिशन ना हो सकता है केवल एक ट्रांजिशन हो, और हो सकता है एक से ज्यादा ट्रांजिशंस हो, लाइक 2, 3, 4,
5, and so on, any number up till infinity. So many more transitions are possible. So नॉन NFA में हमने DFA से क्या चेंज किया कि हमने इसको फ्लेक्सिबल बनाया, हमने इसको और पावर दी कि इसमें जीरो ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, किसी स्टेट से किसी पर्टिकुलर सिंबल पे हो सकता है कोई ट्रांजिशन ना जा रहा हो सकता है केवल एक ही ट्रांजिशन जा रहा हो, या हो सकता है एक से ज्यादा ट्रांजिशन जा रहा है. So this change we have brought to the DFA, and our resulting structure is called NFA. I hope you have understood what do we mean by NFA. Is it, Aditya? Yes, sir. Okay. Let us take one example. Okay. So I'm taking an example in which your sigma is only A. So there is only one alphabet symbol in your alphabet, that is A. So over which we are going to define our machine. Okay. So this machine I have defined. This is the start state. Now on A, it is having three transitions. One transition is going to this state, which is a final state. Another transition is going to this state, which is a non-final state. And third transition goes to this state, which is further having the transitions over A and ultimately reaching to a final state. So यहाँ पे अगर आप देखिए तो you are having, आप देखिए DFA के हिसाब से इसमें सब कुछ है, केवल एक ही सिंबल है तो हर स्टेट से मैक्स जो है क्या हो सकता है, एक ही ट्रांजिशन बाहर जाना चाहिए. अब चूंकि हम NFA बना रहे हैं तो हमने क्या अलाउ किया, जीरो ट्रांजिशंस भी अलाउ किए. यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टेट देयर इज नो ट्रांजिशन आउटगोइंग. अगर ये DFA होता तो इस स्टेट का A पर ट्रांजिशन आपको डिजाइन करना पड़ता. ठीक है, अब चूंकि ये NFA है तो रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, हमने यहाँ A पे ट्रांजिशन नहीं बनाया. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने A पर ट्रांजिशन नहीं बनाया. इस पर्टिकुलर स्टेट पे भी देखें तो आपने A पर ट्रांजिशन नहीं बनाया. इस स्टेट का A पर ट्रांजिशन है और इस स्टेट का आप देखिए A पे एक नहीं मल्टीपल ट्रांजिशंस है, 1, 2 एंड 3. तीन ट्रांजिशन आपने इस स्टार्ट स्टेट से बनाए हैं A पर. सो व्हाट we have done, we have taken an example of an NFA in which we are allowing 0, 1 और more ट्रांजिशन. आप देखिए इस पर्टिकुलर स्टेट में 1, 2, 3, इन तीन स्टेट्स में हमने कोई ट्रांजिशन नहीं लिया. इस पर्टिकुलर स्टेट में हमने केवल एक ट्रांजिशन लिया है A का, और इस पर्टिकुलर स्टेट में जो कि स्टार्ट स्टेट भी है हमने A के तीन ट्रांजिशन लिए हैं. सो इट इज परफेक्टली डिफाइंड NFA. इज इट और नॉट? आप देखिए स्टार्ट स्टेट भी है, फाइनल स्टेट्स भी हैं, स्टेट्स भी हैं. ठीक है, और अब हमारे ट्रांजिशंस भी हैं. इज इट? जैसा हमारे NFA के लिए था वैसे ही ट्रांजिशंस भी हैं. सो इज इट एन कंप्लीट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन NFA? Now we have some discussion over it. Now if you look at from the initial state, if you are reading an A, in this state, always you will start executing any string from the start state. So अगर आपका string केवल A है, okay, so your only string is A. You are reading an A. Only this is your string. So whether this A will be the part of the language or not, whether it is accepted by the machine or rejected by the machine. आप देखिए अगर आप स्टार्ट स्टेट से शुरू करें एग्जीक्यूट करें तो आपके पास A के लिए तीन पाथ है. पहला पाथ, अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, if you follow this path, then you will reach to a final state. और आपका वहीं पे स्ट्रिंग फिनिश हो गया तो फाइनल स्टेट में फिनिश हुआ तो क्या होना चाहिए, ये एक्सेप्ट होना चाहिए. लेकिन अगर आप सेकंड पाथ फॉलो करें, तो यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर स्टेट और आपका स्ट्रिंग कहाँ फिनिश करेगा, एक नॉन फाइनल स्टेट में फिनिश करेगा. तो यहाँ आपका स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए. यहाँ क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट, और यहाँ क्या होना चाहिए, रिजेक्ट. सिमिलरली ऑन दी थर्ड पाथ ऑल्सो, अगर आप इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं, इज इट, तो आप कहाँ फिनिश करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेट में फिनिश करेंगे. ओके, एंड यहाँ भी क्या होगा, आपका स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा. इज इट ओके? सो आप देखिए एक पाथ पे आपको सक्सेस मिल रही है और दो पाथ पे आपको रिजेक्ट मिल रहा है, तीन पाथ पॉसिबल है. सो अब क्वेश्चन ये है कि मशीन कौन सा पाथ फॉलो करे. मशीन कैसे डिसाइड करेगी कि उसे पहला पाथ फॉलो करना है, उसे दूसरा पाथ फॉलो करना है, उसे तीसरा पाथ फॉलो करना है. अगर आप इसको DFA से कंपेयर करें तो DFA में ये सिचुएशन अराइज ही नहीं हो सकती. क्यों नहीं अराइज हो सकती? क्योंकि हर स्टेट से हर सिंबल पे केवल एक ही ट्रांजिशन बाहर जा रहा होगा. यानी कि अगर ये स्टार्ट स्टेट थी तो इससे A पर केवल एक ही ट्रांजिशन बाहर जा रहा होता अगर ये DFA होता.
तो वहां कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होता, मशीन को डिसाइड करना ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जिस स्टेट में है और जिस इनपुट सिंबल पे है, तो वो इनपुट सिंबल उसको जहां भी ले जा रहा है उसको वही फॉलो करना। इज इट? सो वहां आपके डिसीजन की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ एनएफए में आपका क्या प्रॉब्लम आ गई? डिसीजन की प्रॉब्लम आ गई कि अमंग द अवेलेबल मल्टीपल पाथ्स which path your machine should follow. And this is the simple concept of non-determinism. So that's why we call our this kind of machine as non-deterministic machine. We call this as non-deterministic machine. So that's why this name is given to this machine is NFA. Now I hope it is clear what do we mean by non-determinism. When your machine is not able to decide which path to follow. Okay, then this is the situation of non-determinism. And in NFA, this situation arises. So that's why this is called non-deterministic finite automaton. This situation does not arise into a DFA. So that's why that is called a deterministic machine, deterministic finite automaton. वहां पे क्या है? हर चीज deterministic है, decided है. अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट ये होगा, अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट ये होगा. For every possibility, you have decided what to be done. While in NFA it is not there, so that's why this is called non-deterministic. I hope non-determinism is clear. और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. क्लास? सर. Okay. सर क्लियर है. So now we come to the second concept related to the NFAs, that is the notion of acceptance. DFA में कैसे एक्सेप्ट होता था कि हम स्ट्रिंग को स्टार्ट स्टेट से रन करना शुरू करते थे. ठीक है, एक लेटर पढ़ते जाते थे, उस लेटर के अकॉर्डिंग हम जिस भी स्टेट पे थे, कौन सी नई स्टेट पे जाना है वो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हमें बताता था. और अल्टीमेटली जब हमारा स्ट्रिंग फिनिश होता था, तो अगर हम एक फाइनल स्टेट में रेस्ट करते थे तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता था. अगर एक नॉन फाइनल स्टेट में अल्टीमेटली रेस्ट करते थे तो हमारा स्ट्रिंग क्या होता था? रिजेक्ट होता था. लेकिन वो पॉसिबिलिटी कब थी? जब हमारा इनपुट स्ट्रिंग केवल एक ही पाथ फॉलो करता था. अब यहाँ तो आप देखिए, मैंने ए पे आपको देख के बताया कि हमारे 3 पाथ थे स्ट्रिंग ए के लिए. एक पाथ हमें सक्सेस पे ले जा रहा था और 2 पाथ हमें फेल्योर पे ले जा रहे थे. सो अब हम इस ए को एक्सेप्टेड बताएं या रिजेक्टेड बताएं. सो जैसे मैंने आपको लिखा कि ऑन फर्स्ट पाथ ए विल गेट एक्सेप्टेड, वाइल ऑन अदर 2 पाथ्स इट विल गेट रिजेक्टेड. इज द इनपुट स्ट्रिंग ए is accepted or rejected? This is the question. The answer to this question is string A is accepted. It is accepted. Why it is accepted? Because if we have multiple paths, we have to ignore all the failures and accept the string if there exists at least one path which is leading to the success or which is leading to a फाइनल स्टेट. सो यहाँ पे हमारे पास आप देखिए इन तीनों पाथ्स में से क्या है? ये 2 पाथ रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें दोनों पाथ इग्नोर कर देने हैं. हमारे पास एक पाथ है जो हमें अल्टीमेटली फाइनल स्टेट पर रेस्ट कर रहे हैं. इस पाथ के थ्रू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो अगर कोई भी एक पाथ, कम से कम एक पाथ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक पाथ अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हमारा स्ट्रिंग सक्सेस हो रहा है, तो हम उसको क्या मानेंगे? उस स्ट्रिंग को सक्सेस मानेंगे. यानी जितनी भी फेल्योर्स हैं उन सबको हमें भूल जाना है, उन सबको छोड़ देना है. केवल हमें सक्सेसेस को देखना. अगर एक भी सक्सेस है तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा. स्ट्रिंग रिजेक्ट कब होगा? जब सारे के सारे पाथ्स पे आपको फेल्योर मिले. मान लीजिए 3 पाथ थे और तीनों पाथ से आपको फेल्योर मिलती, किसी भी पाथ से आपको एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा स्ट्रिंग. इन दैट केस यू विल डिक्लेयर यस दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज रिजेक्टेड. अदरवाइज अगर एक भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे एक्सेप्ट हो सकता है, तो आप स्ट्रिंग को क्या एज्यूम करेंगे? एक्सेप्टेड एज्यूम करेंगे. आई थिंक इट इज क्लियर. Class, it is clear? Yes, sir. Okay. If we compare the situation with the DFA, so in DFA, each string follow a unique path. Each string follow a unique path. आप अभी देखिए क्यों यूनिक पाथ फॉलो करता है? क्योंकि हर स्टेट से हर सिंबल पे केवल एक ही पाथ बाहर जा रहा है. सो कोई दूसरा पाथ हो ही नहीं सकता. सो जो भी स्ट्रिंग आप उस पर एग्जीक्यूट करेंगे तो एक यूनिक पाथ फॉलो करेगा. इज इट? जबकि NFA के केस में क्या है? सेम स्ट्रिंग may follow multiple paths. As we have seen this example, this string is following 3 paths. Okay, some of which may lead to the acceptance and other may lead to the failure. And again, what we have to see, we have to look only the successes. अगर हमारा किसी भी path से success हो रही है तो string accepted है, otherwise string rejected.
Now we come to the next concept. We take a string. That string is AAA. So what string we are taking? We are taking AAA. अगर ये string हम इस FA पे एग्जीक्यूट कराएं तो पहले पाथ पे पहला A हमें यहाँ ले जाएगा. ओके, जब अगला A रीड कर रहे होंगे तो इस स्टेट से अब A पे कोई ट्रांजिशन तो है नहीं, तो कहाँ जाए? कुछ पता ही नहीं कहाँ जाए, क्योंकि A पे कोई ट्रांजिशन इस स्टेट से है ही नहीं. सो वी विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर. अभी हमारा स्ट्रिंग पूरा रीड नहीं हुआ है, स्ट्रिंग अधूरा है, स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुआ हमारा, स्ट्रिंग अभी रास्ते में है, आधा है, पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं हुआ. पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं हुआ और हम एक ऐसी स्टेट पे पहुंच गए जहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते. सिमिलरली अगर हम सेकंड पाथ पे देखें, सेकंड पाथ पे हम इस स्टेट पे पहुंचेंगे, पहला ए रीड करने के बाद सेकंड ए रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे हमें पता ही नहीं. तो सिमिलर सिचुएशन है पहले और दूसरे पाथ पे. अगर थर्ड पाथ पे भी जाएं तो पहला ए हमें यहाँ ले जा रहा है, दूसरा ए हम रीड करेंगे तो इस फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, बट देन तीसरा ए जब रीड करेंगे अगेन द सेम सिचुएशन अराइजेस. कहाँ जाएं? क्योंकि इससे ए पर कोई ट्रांजिशन है नहीं, अभी स्ट्रिंग मेरा पूरा प्रोसेस नहीं हुआ और मैं एक ऐसी स्टेट, ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहां से मैं कहीं भी मूव नहीं कर सकता. आई कैन नॉट लीव दैट स्टेट और मेरा स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुआ. अगर मेरा स्ट्रिंग फिनिश हो जाता तो मेरा डिसीजन हो जाता कि अगर मेरा स्ट्रिंग फाइनल स्टेट में फिनिश करता तो एक्सेप्ट होता, नॉन फाइनल स्टेट में फिनिश करता तो रिजेक्ट होता. बट क्वेश्चन यहाँ ये है कि इन तीनों ही पाथ पे मेरा पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा, स्ट्रिंग अभी आधे रास्ते में है. तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी मिलती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनपुट क्रैश. सो व्हेन एन इनपुट स्ट्रिंग दैट हैज नॉट बीन कंप्लीटली रेड, यानी कि जो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है अभी, रीचेस टू ए स्टेट दैट इट कैन नॉट लीव, जिससे आगे वो बढ़ नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो आउटगोइंग एज दैट इट मे फॉलो, क्योंकि उससे आगे कोई ऐसी एज ही नहीं है जिसको वो फॉलो कर सके. ऐसा नहीं है, देखिए एज हो सकती है मगर वो एज उस पर्टिकुलर सिंबल के लिए नहीं है जिसको उसको फॉलो करना है. देन वी से दैट इनपुट और मशीन हैज क्रैश्ड एट दैट पर्टिकुलर स्टेट. So that particular thread of execution will go. So we will terminate the execution in that case and input must be rejected. यानी कि अगर हमारा input crash होता है तो वो input क्या होगा? Reject हो जाएगा. अगर वो input crash होगा तो उस particular thread of execution में उस input को हम क्या करेंगे? Reject करेंगे. So this is the concept of input crash or machine crash. This is a important concept. ये concept आपका DFA में नहीं था. क्यों? क्योंकि डीएफए में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आती जहां पे आपको ये कंडीशन हो कि जो है मेरी एक पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच गया और मेरे पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, यानी कि मैं अभी इनपुट स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुआ. अगर आपका इनपुट स्ट्रिंग में लेटर्स हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी भी जरूर होगी कि आप किस पाथ पे फॉलो करें, क्योंकि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल पे एक ट्रांजिशन बाहर जा रहा होगा. तो आपको हमेशा पता होगा कि किस नेक्स्ट स्टेट पे आप पहुंच सकते हैं. तो डीएफए के केस में इट इज अ गारंटीड that your input string will be processed fully, while in NFA it is possible that your input string is not processed fully. We have taken this example of AAA. This AAA you cannot process over this FA fully. या तो सिंगल ए रीड करने के बाद या दो ए रीड करने के बाद आप स्टक कर जाएंगे, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते. So if such a situation is there, then your execution will terminate and your input will be rejected, and it is called input crash. Is it clear, class? Yes, sir. Okay. So these were important concepts related to the NFAs. अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो आगे एफए में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. Now we come to the formal definition of NFA. Okay. अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो जैसे हमने इनफॉर्मल डेफिनेशन भी कही कि हमने डीएफए की डेफिनेशन के बेस पे एनएफए की डेफिनेशन डिसाइड की. हमने क्या कहा? एनएफए इज अ डीएफए विद मॉडिफिकेशन टू अलाउ 0, 1 और मोर ट्रांजिशंस फ्रॉम ए स्टेट ऑन सेम इनपुट सिंबल. यही तो हमने कहा. तो हमने केवल कुछ मॉडिफिकेशन की, यानी कि बाकी सब कुछ डीएफए जैसा था. तो इसेंशियली एन एनएफए इज रिप्रेजेंटेड लाइक डीएफए. डीएफए को भी हम इसी जो है 5 टपल से रिप्रेजेंट करते थे, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F. सो NFA इज आल्सो डिफाइंड बाय दिस 5 ट्रिपल Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F. तो यहाँ पर Q क्या होगा? Q इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. सिग्मा क्या होगा? इट इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स. डीएफए में भी ये बिल्कुल ऐसे ही थे. Q वाज द सेट ऑफ स्टेट्स एंड
sigma was the set of symbols. Okay, then q0 was the member of q and it was known as the start state, same as DFA. Then capital F was a subset of q, it was known as the set of final state, same as DFA. Now come on the fifth one. Delta is a transition function. In DFA also it was a transition function that takes a state q. तो Q से एक स्टेट लेगा, यानी कि इसके इनपुट्स क्या होंगे, एक स्टेट होगी एंड एन इनपुट सिंबल फ्रॉम सिग्मा, और एक सिंबल लेगा, यानी कि किस स्टेट में है, कौन सा सिंबल रीड कर रहे हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड करेगा, इट विल रिटर्न ए सबसेट ऑफ Q. बस यहीं पे डिफरेंस है NFA और DFA के बीच में. एंड DFA में क्या था कि हर स्टेट और हर इनपुट सिंबल के करस्पॉन्डिंग ये बताता था कि आप कौन सी नई स्टेट पर पहुंचेंगे, विच न्यू स्टेट यू विल रीच. ओके, लेकिन यहां ये क्या बता रहा है, यहां ये बता रहा है सबसेट ऑफ क्यू, यानी विच स्टेट्स यू कैन रीच, नॉट ए सिंगल स्टेट. It is possible that multiple states you can reach. This is the only difference. So it will tell you all the states which are reachable from a given state and input symbol. So this transition function delta will be of the form delta is such that q cross sigma to 2 to the power q. I think everybody understand that 2 to the power q is the power set. So if we take a member from the power set, so power set में members कौन से होंगे, जो set के subsets हैं जितने भी, वो सारे के सारे members होंगे 2 to the power q के. So it will return you a subset of q, means it will tell you which states you can reach on a from a given state and given input symbol. क्योंकि multiple states आप यहाँ reach कर सकते हैं. आप देखिए पिछला अगर आप example देखें, यही वाला example, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप ए रीड करते हैं तो यू कैन रीच टू दिस स्टेट एंड दिस स्टेट. सो ए सेट ऑफ स्टेट्स यू आर able to reach. So that's why result will be a set of states. And obviously बात है, जो भी set of state होगा, ये जितने भी पूरा states हैं आपका, उसका एक subset होगा. So that's why you are being given a subset of Q. So this is the only difference. अगर आप DFA के लिए देखें तो for DFA क्या था, for DFA delta was q क्रॉस सिग्मा टू q, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में है, एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल अगर रीड कर रहे हैं तो ये आपको बताएगा कौन सी नई स्टेट में जाएंगे. q का कोई एलिमेंट आएगा, यानी q का एलिमेंट कोई एक स्टेट आएगी, सिंगल स्टेट, जबकि यहां क्या आएगा, यहाँ 2 to the power q का कोई एलिमेंट आएगा, तो इस सेट ऑफ स्टेट्स. So this is the only difference between the NFA and DFA. Otherwise, NFA and DFA are exactly the same as far as formal definition is concerned. I hope it is clear. Class. Yes, sir. Okay. Yes, sir. What we do, we will take an example. So we have to design an NFA to accept all strings over sigma is equal to 0, 1, which ends with 0, 1. So I hope इसका अगर DFA बनाने के लिए कहा जाता तो आप सब बड़े आराम से बना सकते थे. कैसे बनाएंगे इसको, सक्सेस पाथ से बना लेंगे आराम से, इज इट. लेकिन हमें DFA नहीं बनाना, हमें NFA बनाना. रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी 0 + 1 * 0, 1 ये होगी. ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं क्लास, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले इसका एक DFA बना लेते हैं. DFA आप सबको आता है तो पहले सबसे पहले DFA बनाते हैं. किससे बनाएंगे, सक्सेस पाथ से बनाएंगे. मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट बना रहा हूँ Q0, ये मेरी क्या है, स्टार्ट स्टेट है. इससे सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 0 चाहिए, ये मेरी Q1 स्टेट हो गई. और क्या चाहिए, एक 1 चाहिए, ये मेरी Q2 स्टेट हो गई. एंड इट इज द फाइनल स्टेट एज वेल, इज इट. So 0, 1 सक्सेस पाथ बना लिया. अगर ये 0, 1 लास्ट 0, 1 है, लास्ट 2 लेटर्स हैं, तो मेरा स्ट्रिंग सक्सेसफुल. अब मैं कंप्लीट करता हूं. अगर मुझे 0 मिला तो सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ूंगा, शायद 0, 1 मिलने जा रहा है, ठीक है. लेकिन अगर 1 मिला तो आई विल स्टे हेयर, 1 पर आई विल स्टे हेयर. ओके, जब तक 1 मिलता रहेगा यहीं स्टे करूंगा, जैसे ही 0 मिलेगा आगे बढ़ जाऊंगा कि शायद एक 1 मिल जाए तो मुझे सक्सेस मिल जाए, ठीक है. अब यहाँ पे मुझे 0 मिल गया तो मैं इस Q1 स्टेट पे आ गया. अब यहाँ से अगर 1 मिलता है तो मैं सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर 0 मिलता है तो I will stay here, क्योंकि still last letter read is 0.
एक 1 मिलते ही मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो इसलिए मैं इसी स्टेट पर स्टे करूंगा। इज इट? अब Q2 पे पहुंच गए सपोज जो है, तो यानी कि एक 0 1 आपको मिल चुका, तो अब तक आपने जो स्ट्रिंग रीड किया है वो आपका सक्सेसफुल होगा अगर वहीं पे फिनिश हो जाए। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है फिनिश हो, अगर मान लीजिए इसके बाद मेरे को इस स्टेट के ट्रांजिशन भी तो बनाने हैं। अब अगर मेरे 0 आया तो क्या मतलब है, 0 आया तो 1 0 से एंड होगा, तो 1 0 से एंड तो एक्सेप्टेड है नहीं। तो अब मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए, अगर 0 आया तो एक 0 तो आ चुका, अगर एक 1 आ जाए तो फिर सक्सेस मिल जाएगी। तो 1 लेकर के सक्सेस पे मैं कहां से आ सकता हूँ, इस स्टेट Q1 से। सो ऑन 0 आई विल बी मूविंग बैक टू दिस स्टेट Q1, ठीक है। और अगर मेरे को 1 मिलता है तो, अगर 1 मिलता है तो मेरा 1 1 से एंड हो रहा है। अब 0 भी नहीं है, अब मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए, मुझे पूरा 0 1 चाहिए। तो पूरा 0 1 मुझे कहां से मिलेगा, Q0 स्टेट से मिलेगा। तो ऑन 1 आई विल बी मूविंग टू दी स्टेट Q0। सो ये मेरा DFA बन जाता। अब मुझे DFA तो बनाना नहीं है, मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है NFA। सो NFA भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे आप ये बना रहे हैं। मैं क्या करता हूं, Q0 मेरी स्टार्ट स्टेट हो गई। सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 0 चाहिए और एक 1 चाहिए कंटिन्यूएशन में, और ये लास्ट 2 लेटर्स हों अगर मेरे, तो मेरा क्या है, सक्सेस फाइनल हो जाएगी। इज इट? सो ये मेरी Q2 फाइनल स्टेट, वही सक्सेस पाथ बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये 0 1 लास्ट 2 लेटर्स होने चाहिए, यानी कि इसके बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आना चाहिए तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं बनाता, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 0 1 लास्ट 2 लेटर्स चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं आना चाहिए तो यानी कि इसके बाद में कुछ भी नहीं बना रहा हूं। अब इस 0 1 से पहले क्या आ सकता है, अगर 0 1 से पहले आप देखें कुछ भी आ सकता है, एनी स्ट्रिंग ओवर 0 एंड 1। और कुछ भी 0 1 पे कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल्फ लूप बनाते हैं इस पे 0 पे और 1 पे। इज इट? सो मैंने क्या किया, एक तरह से अगर आप देखें तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो था उसी रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर देखो, मुझे 0 + 1 स्टिक चाहिए था, मैंने 0 + 1 स्टिक बनाया है। उसके बाद एक 0 1 चाहिए तो एक 0 1 बनाया, और बात खत्म हो गई, खेल खत्म। इज इट? तो क्या हुआ, ये मेरा बन गया NFA corresponding to this particular language। ये मेरा क्या था, DFA। अब अगर आप ध्यान से देखो DFA और देखो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को, इनमें कोई तालमेल, कुछ कोरिलेशन कुछ नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता। आप देखिए DFA का डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिखाई दे रहा है। इज इट? काफी कॉम्प्लिकेट, सही है DFA, ये हमें मालूम है, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम चेक कर चुके हैं, बट इट इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन। ओके, ये इसे इस DFA को देख करके आपको ये समझ में नहीं आता आसानी से कि लैंग्वेज क्या है। आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, चूंकि आप एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा DFA बनाने में, तो आप शायद एनालाइज करके आराम से इसकी लैंग्वेज बता पाए, बट इट इज नॉट सो इजी। लेकिन अगर आप इस NFA को देखिए, अगर आप इस NFA को देखिए, तो NFA को कंपेयर करिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, बिल्कुल जैसा रेगुलर एक्सप्रेशन दिख रहा है वैसे ही NFA दिख रहा है। इज इट? सो आप अगर लैंग्वेज की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि लास्ट 2 लेटर शुड बी 0 1 और उससे पहले कुछ भी आए, लास्ट 2 लेटर्स आर 0 1 और उससे पहले कुछ भी आए। सो NFAs आर मोर क्लोज टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, दे आर मोर सक्सिएंट, दे आर इजियर टू डिजाइन। आप देखिए ये डिजाइन करना भी आसान है इसमें, चूंकि लेसर नंबर, नॉर्मली NFA में आपके DFA से कम ट्रांजिशंस होंगे, तो आपका जो है NFA बनाने में भी सिंपल होगा। अभी आप बिल्कुल सिंपल सिंपल ले रहे हैं तो जो है इतना डिफरेंस शायद ना पता चले, बट जब आप कॉम्प्लिकेटेड DFAs बनाते हैं तो DFAs बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग NFAs बनाना आपको आसान रहता है। आप देखिए वाई इट इज NFA। NFA क्यों है, आप देखिए Q2 का मैंने ना 0 पे ना 1 पे ट्रांजिशन ही नहीं बनाया। So Q2 on 0 and 1 I have defined 0 number of transitions, कोई ट्रांजिशन बनाया ही नहीं। अगर आप Q1 को देखिए, इसका 1 पे ट्रांजिशन तो है लेकिन 0 पे ट्रांजिशन नहीं है, तो 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं बनाया, 1 पे सिंगल ट्रांजिशन बनाया है। इज इट? इसी तरह से अगर आप Q0 का देखिए तो 1 पे तो एक ट्रांजिशन है, लेकिन 0 पे 2 ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन टू इटसेल्फ और एक ट्रांजिशन टू Q1 स्टेट। सो 0 पे कितने ट्रांजिशन है इस Q0 स्टेट के, 2 ट्रांजिशन है। तो 0 1 और एक से ज्यादा ट्रांजिशन मैंने अलाउ किए हैं यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई दिस इज एन NFA। अब क्वेश्चन ये कि मैंने बना तो दिया, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, सीधा समझ में भी आ रहा है, वेदर इट विल वर्क करेक्टली और नॉट, ये सही काम करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। आप देखिए NFA पे सक्सेस के लिए क्या क्राइटेरिया है। NFA पे सक्सेस के लिए क्राइटेरिया है, कोई भी एक स्ट्रिंग लीजिए आप, उसको NFA पे एग्जीक्यूट कराइए। अब DFA होता तो वो स्ट्रिंग एक यूनिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली जिस स्टेट में पहुंचना होगा उस स्टेट में पहुंचेगा। अगर फाइनल स्टेट में पहुंचता है तो एक्सेप्ट,
नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचता है तो रिजेक्ट, इज इट? लेकिन वही स्ट्रिंग इस NFA पे मल्टीपल पाथ फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं 0 0 1, सपोज ये छोटा सा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं 0 0 1, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट कराना शुरू करते हैं इस पे। पहला 0, अब या तो आप Q0 पे रह सकते हैं या आप Q1 पे जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको। तो अगर आपने 0 पे ही, इस Q0 पे ही रहना चूज किया, तो आपकी स्टेट क्या हो गई? Q0। उसके बाद अगला 0 आपने फिर रीड किया, वापस आपके पास चॉइस है या तो Q0 पे रहें या Q1 पे जाए, तो आपने वापस चूज किया Q0 पे रहना। फिर तीसरा 1 है आपका, 1 पे तो कोई चॉइस ही नहीं है, Q0 पे रहना, तो आप Q0 पे एंड किए, यानी 0 0 1 के एग्जीक्यूशन के बाद आप कौन सी स्टेट पे? Q0 स्टेट पे। और Q0 क्या है? एक नॉन फाइनल स्टेट है, तो आपका स्ट्रिंग क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ये पहला पाथ। इसी तरह से आप देखिए दूसरा पाथ, ये पहले 0 पे मैं क्या करता हूं? यहीं पे स्टे करता हूं, ठीक है। पहले 0 पे मैं क्या करता हूं? यहीं पे स्टे करता हूं, Q0 पे रहा, मैं Q1 पे नहीं गया। अब जब अगला 0 आया तो वापस मेरे पास चॉइस थी, या तो Q0 पे रुकता है या Q1 पे जाता। अब की बार मैंने चूज किया Q1 पे जाना, तो मैं गया Q1 पे, ठीक है। अब उसके बाद मुझे 1 मिला, 1 पे एक ही चॉइस है मेरे पास, Q2 पे पहुंचना है। अब मेरा स्ट्रिंग भी फिनिश हुआ और मैं Q2 स्टेट पे हूं जो कि फाइनल स्टेट है, तो मेरा स्ट्रिंग क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, यानी कि इस पाथ के थ्रू 0 0 1 एक्सेप्ट हो गया। और एक पाथ पॉसिबल है कि आप क्या करते, पहले 0 पे ही बजाय Q0 पे स्टे करने के आप Q1 पे आ जाते। अब उसका जब आप सेकंड 0 रीड करेंगे तो Q1 से 0 कहाँ जाए? 0 पे कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा? आपका इनपुट क्रैश कर जाएगा। अगर इनपुट क्रैश कर जाएगा और कोई और पाथ आपके पास है भी नहीं, तो आपका एग्जीक्यूशन यहीं पे फिनिश होगा और स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि 3 पॉसिबल पाथ मुझे फिर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 पाथ पे रिजेक्ट और 1 पाथ पे एक्सेप्ट। तो अब चूंकि एक पाथ पे ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो मेरा स्ट्रिंग क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। आप देखिए, कोई भी स्ट्रिंग जो 0 1 से एंड कर रहा होगा, उसको एक्सेप्ट करने का एक मेथड यहां हमेशा होगा, क्या? कि लास्ट का जो 0 1 है उस पे तो आप Q1 और Q2 स्टेट पे आए, और उससे पहले का जो कुछ भी है 0 1 का कोई भी स्ट्रिंग आप यहां कंज्यूम कर सकते हैं, जो कुछ भी ये 0 आए या 1 आए, आप Q0 स्टेट पे बने रहे, ठीक है। और जब लास्ट 0 1 आए, तो आप लास्ट सेकंड लास्ट लेटर अगर 0 है तो उस पे आप इधर आ जाए, 1 पे इधर आ जाए। सो ऑलवेज देयर विल बी वन पाथ by which you can get you can lead to the Q2 state if your string is ending with 0, and there is always at least one path. Okay, so your all strings which are ending with 0 1 will get accepted over this particular machine. I hope it is clear. Class, is it clear? Yes, sir. Okay, now what I will do, to have a more understanding about how a string gets processed over NFA, I will take a particular example and we will look at what happens. Okay, so I am taking a string that is 0 0 1 0 1. Is it? So this is a string which I wish to execute over it. Q0 से स्टार्ट करते हैं, Q0 स्टेट, ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा? पहला 0 मिलेगा, ठीक है। जब पहला 0 मिलेगा तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं Q0 स्टेट में, या तो Q0 पे रहूं या Q1 पे। अब आपकी मशीन क्या करेगी? यहाँ क्या आ गया? नॉन डिटरमिनेट। अब आपकी मशीन डिसाइड नहीं कर सकती क्या करेगी। अब जब डिसाइड नहीं कर सकती क्या करेगी, तो ये क्या करती है? ये सब कुछ करती है, जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती है। क्यों एक्सप्लोर करती है? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड कब होगा? अगर सारे पॉसिबल पाथ्स में कोई भी एक पाथ सक्सेस पे ले जा रहा है, तो वो कौन सा पाथ होगा मशीन को तो मालूम नहीं। तो मशीन ये देखने के लिए कि हर पाथ आपको कहाँ ले जा रहा है, वो जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं सारे पाथ्स को एक साथ फॉलो करती है। ओके, सो जैसे ही 0 मिला तो एक पाथ तो आपको ले जाएगा Q0 पर, और दूसरा पाथ आपको क्या ले जाएगा? Q1 पर। इज इट? एक पाथ Q0 पे और दूसरा पाथ आपको Q1 पे, यानी कि एक साथ दो पाथ आपकी मशीन फॉलो कर रही है। अब जब आप अगला लेटर रीड करेंगे, अगला लेटर भी क्या है आपका? 0 है। अब अगला लेटर 0 है, अगर आप इस पाथ को फॉलो कर रहे थे Q0 को, तो अगेन आपके पास दो चॉइसेस हैं, यानी कि 0 मिलने पे आप Q0 पे रहेंगे या Q1 पे जाएंगे। सो अगेन यहां से आपके दो पाथ बन जाएंगे। 0 पे या तो आप Q0 पर ही रहेंगे या फिर आप Q1 पर आ जाएंगे।
ठीक है, अब मैंने केवल ये वाला पाथ फॉलो किया था, ये वाला पाथ भी तो फॉलो करना है Q1। अब सपोज अगर मैं Q1 पे था और मेरे को 0 मिला था, ये सेकंड लेटर रीड कर रहा हूँ, तो Q1 से 0 पे तो कोई ट्रांजिशन है ही नहीं। अगर Q1 से 0 पर कोई ट्रांजिशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इस पर्टिकुलर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन पर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आगे नहीं बढ़ सकता तो क्या होगा, ये थ्रेड टर्मिनेट होगा और मेरा स्ट्रिंग क्या होगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर थ्रेड पे जो मेरा स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी बाकी थ्रेड्स मेरे चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इस थ्रेड को मैं यहीं पे कर दूंगा, तो दिस थ्रेड विल डाई आउट, दिस थ्रेड विल डाई आउट। ओके, सो ये थ्रेड डाइड हो जाएगी, दिस थ्रेड इज डेड। ओके, नॉट डाइड, it should be, I should write die out or it dies. Okay, now अब मेरे पास ये दो थ्रेड हैं जो एक्टिव हैं। अब मैं दो सिंबल रीड कर चुका हूँ, तीसरा सिंबल मेरे को रीड करना है। ओके, तो तीसरा सिंबल रीड करना है, ये है 1। सो अब Q0 की स्टेट में अगर मेरे को मिलेगा 1, तो Q0 on 1 वेयर आई शुड मूव, आई शुड मूव टू Q0, दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, इज इट। लेकिन अगर मैं Q1 स्टेट में हूं और मेरे को एक 1 मिलता है, ठीक है, सो Q1 on 1 आई कैन गो टू Q2, सो Q1 on 1 आई विल मूव टू Q2। अब आप देखिए कि मेरे जो दोनों पाथ हैं, एक पाथ मेरा Q0 पे पहुंचा और दूसरा पाथ मेरा Q2 पे पहुंचा। अगर मेरा स्ट्रिंग केवल यहीं तक होता तो मैं, चूंकि सारे पॉसिबल पाथ्स में से एक पाथ ऐसा है जो मुझे Q2 यानी कि फाइनल स्टेट पे ले जा रहा है, यानी कि मेरा स्ट्रिंग यहीं फिनिश होता तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता। आप देखिए 0 0 1, दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एंडिंग विद 0 1। इज इट क्लियर? सो इट इज एंडिंग विद 0 1, लेकिन अब मेरा स्ट्रिंग यहाँ तो फिनिश हुआ नहीं, तो मुझे आगे फर्दर प्रोसेस करना है। सो नेक्स्ट लेटर मेरा क्या है, 0। अगेन Q0 on 0, देयर विल बी टू चॉइसेस, either I will state Q0 or I will move to Q1। अब Q2 पे रहूंगा, अब Q2 पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब Q2 पे तो कोई ट्रांजिशन मैंने डिफाइन ही नहीं किया, यानी कि अगर जब मैं 0 रीड कर रहा हूं तो ये वाले थ्रेड तो मेरे चलेंगे, बट दिस थ्रेड विल डाई आउट बिकॉज आई कैन नॉट फर्दर परस्यू इट। Q2 से 0 पे कोई ट्रांजिशन ही नहीं है मेरे पास। Q2 में अगर हूं तो मुझे नहीं पता 0 पे मेरे को कहां जाना है, इज इट। सो दैट्स वाई यहाँ सक्सेस पे पहुंच के भी मेरा थ्रेड क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, क्योंकि 0 0 1 तक सक्सेस थी, लेकिन 0 0 1 0 आते ही मेरी सक्सेस खत्म हो गई, मेरा इनपुट क्रैश कर गया और मेरे पर्टिकुलर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो गया, इट डाई आउट, इट डाइज। ओके, सो मेरा ये थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, मैं बाकी दो पे परस्यू करूंगा। अब नेक्स्ट अगला लेटर रीड करूंगा 1, Q0 on 1 it moves to Q0 only, there is no other choice। आप FA की ट्रांजिशंस को देखिए, और अगर Q1 से मेरे को 1 मिलता है तो इट इज Q2, इट इज Q2 विच इज ए फाइनल स्टेट। सो आप देखिए अब मेरा स्ट्रिंग पूरा प्रोसेस हो चुका, अब मेरा स्ट्रिंग चूंकि पूरा प्रोसेस हो चुका, तो अब मैं अपने जितने भी लाइव पाथ्स हैं उन पाथ्स पे देखूंगा कि किसी पाथ से सक्सेस मिल रही है क्या। आप देखिए इस पाथ से तो मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो इट इज ए फेल्योर। लेकिन इस पाथ से मेरे को क्या मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, सक्सेस मिल रही है बिकॉज Q2 इज ए फाइनल स्टेट, सो माई स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। So this input string 0 0 1 0 1 is accepted, is it? So this is the process by which a string gets executed over an NFA। DFA पे अगर आप देखिए एग्जीक्यूट करते तो DFA पे तो सिंपल था। अब मैं DFA का एग्जीक्यूशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। DFA का एग्जीक्यूशन क्या है, सिंपल, Q0 से शुरू करेगा, पहला 0 आपको कहाँ ले जाएगा, Q1, कोई और चॉइस ही नहीं है। Q1 पे फिर अगला 0, वापस Q1 पे रहेंगे, इज इट। उसके बाद अगला क्या लेटर क्या है, अगला लेटर है 1, सो Q1 on 1 यू विल रीच टू Q2, यू विल रीच टू Q2, ठीक है। बट चूंकि यहाँ स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुआ, अगर फिनिश होता तो आप देखिए 0 0 1 यहाँ भी एक्सेप्ट होता, इज इट। अब फिनिश नहीं हुआ तो आगे गया आपके पास 0 1, सो Q2 से 0, Q2 से 0 वापस कहाँ है, Q1, इज इट। और Q1 से फिर 1, Q1 से फिर 1 कहां पहुंच गए, Q2 पर पहुंच गए।
और अब आपका स्ट्रिंग फिनिश हो गया, और फिनिश किस स्टेट में हुआ, एक फाइनल स्टेट में, सो दैट्स व्हाई इट विल गेट एक्सेप्टेड। इज इट? आप देखिए डीएफए में केवल एक सिंगल यूनिक पाथ था किसी भी स्ट्रिंग के लिए, जबकि एनएफए में मल्टीपल पाथ सेम स्ट्रिंग पे पॉसिबल है। उनमें से कुछ पाथ आपको फेल्योर पे ले जाएंगे, कुछ पाथ आपको सक्सेस पे ले जाएंगे, और कुछ पाथ पे आपका थ्रेड डाई आउट कर जाएगा। ठीक है, तो वो पाथ भी एक तरह से आपके क्या है, फेल्योर के पाथ है। तो अगर एक भी सक्सेस का पाथ अवेलेबल है तो आपका स्ट्रिंग क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। I hope now you are very much clear about the concept of NFA and how a string gets processed over the NFA, and I have given a little bit idea how we can design the NFA. Okay, मैंने आपको तरीका बताया, नॉर्मली सक्सेस पाथ फॉलो किया जाएगा इसमें, और सक्सेस के लिए क्या चाहिए, और हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस लें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस से हम डायरेक्ट एनएफए बना सकते हैं। इट इज मोर सक्सिएंट, मोर इजियर टू डिजाइन इफ वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। डीएफए के केस में जबकि ऐसा नहीं है, डीएफए में चूंकि मुझे सारे ट्रांजिशन कंप्लीट करना है तो नॉर्मली इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we come to its ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखा है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं इस एनएफए के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी, एक साइड में हम क्या लेते हैं, स्टेट्स। मेरी कितनी स्टेट्स हैं इसमें, Q0, ये मेरी स्टार्ट स्टेट है तो एरो बना लेता हूँ, Q1 एंड Q2, बिकॉज Q2 इज फाइनल स्टेट एज वेल, तो मैं यहाँ इसको सर्कल भी कर लेता हूँ। इज इट? इधर की तरफ मेरे क्या आएंगे, इनपुट सिंबल्स आ जाएंगे, एक 0 एक 1। सो Q0 on 0, Q0 on 0 reaches to Q0 and Q1 both. Okay, so entry here will be Q0, Q1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस एंट्री को क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है। कर्ली ब्रैकेट मींस कि आई एम रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं ना। सो जब भी आपकी एनएफए की टेबल होगी, उसमें जितनी भी एंट्री आएंगी वो सब कर्ली ब्रेसेस में आएंगी। इसका ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप Q0 Q1 डायरेक्ट लिख दें, हालांकि लिख देते हैं, नॉर्मली लोग समझ जाते हैं कि यस यू आर मेकिंग ए ट्रांजिशन टेबल ऑफ एनएफए, बट कॉन्सेप्चुअली इट इज रॉन्ग। कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू राइट लाइक ए सेट। You have to declare that it is a set consisting of two states, Q0 and Q1. Is it? Now Q0 on 1, Q0 on 1 is single state Q1, Q0. Okay. So even though it is a single state, I am not writing the single state, I am writing it in curly braces because it is a set consisting of a single state. It is a singleton set. It is a singleton set, but it is a set. So always the entries in the table of NFA. Table of NFA will be sets, चाहे भले ही सिंगलटन सेट हो, उसमें एक सिंगल एंट्री ही क्यों ना हो। मल्टीपल एंट्रीज है तो आपको क्लियरली वैसे भी पता चल रहा है कि आपका जो है ये जो है एनएफए का टेबल है, बट सिंगलटन भी हो, एक एंट्री भी हो, तब भी आप उसको कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे, इसका खास ध्यान रखिएगा। नाउ कम ऑन द सेकंड वन, Q1 ऑन 0, कुछ है ही नहीं, किसी स्टेट पे पहुंच ही नहीं सकते, यानी कोई स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब एंट्री क्या आनी है, सेट आनी है। ऐसा सेट जिसमें कोई एंट्री ना हो, कौन सा सेट होगा वो, क्लास कौन सा सेट होगा, Answer. यस। सो आई विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग 5. इट इज द एम्प्टी सेट। ओके, सो इट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एंट्री, okay, not consisting of any element, so that's why it is 5. Now Q1 on 1, it reaches to Q2. Is it? Now Q2 on 0 also it is 5, on 1 it is also 5. Is it? So this will be the transition table in case of NFA. So NFA और DFA की टेबल में डिफरेंस क्या है, DFA की टेबल में हर एंट्री एक सिंगल स्टेट होगी, जबकि NFA की टेबल में हर एंट्री क्या होगी, एक सेट होगी। अब ऐसे ही अगर इसका DFA वाला टेबल में बना दूं फटाफट जल्दी से, सो 0 1, अगेन वही Q0 स्टार्ट स्टेट, Q1 and Q2. So Q0 on 0 is reaching to Q1, on 1 it is reaching to itself Q0, Q1 on 0 is reaching to itself Q1, on 1 it is reaching to Q2, Q2 on 0 is reaching to Q1, and Q2 on 1 is reaching to Q0.
So this is the table for DFA. Now you can see the difference between the table of DFA and NFA. So DFA की table क्या होगी? हमेशा एक single entry होगी. Is it? So that's why it is not required to write it in a set. It is not a set. It is a single state. While in this case it is a set. अब अगर multiple entries है तो set दिखाई दे रहा है, but अगर single entry भी है, even then you have to write it like a set. Is it? So this is the difference between the transition table of NFA and DFA. This is also the method by which you can find out whether you are being given an NFA or DFA. अगर आपको transition table के form में problem दिया गया है, तो आप केवल ट्रांजिशन टेबल के स्ट्रक्चर को देख के पता लगा सकते हैं कि आपको एनएफए दिया गया है या डीएफए दिया गया है. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Okay. So now we discuss one more concept, that is the language of NFA. Language of NFA. अब हमने DFA की लैंग्वेज कैसे डिसाइड की थी? DFA की लैंग्वेज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट था कि all the words, collection of all the words from sigma star, collection of all the words from sigma star which are successful over the DFA are will form the language of that particular DFA. In the similar manner, collection of all words from the sigma star which are successful over the NFA will form the language of the NFA. So L is a subset of sigma star. और कौन से L में कौन से words आएंगे? All those words W which that such that W leads to final state, some final state. अगर आप देखें तो डेफिनेशन डीएफए की भी यही थी, बट डीएफए और एनएफए की डेफिनेशन में अंतर क्या है कि डब्ल्यू लीड करेगा फाइनल स्टेट को थ्रू ए सिंगल यूनिक पाथ इन केस ऑफ डीएफए, बट हियर इन एनएफए देयर मे बी मल्टीपल पाथ्स, सम ऑफ which may lead you to the failure, some of which may die out, and some of which may lead you to the success. So if there exists at least one path which is leading you to the success, then your word W is the part of the language, and all the words W which are the part of the language, if you collect all those words, then it will be the language of NFA. Is it? So this was all about the NFA. Now I will move to the design of NFAs. How to design NFAs. For this I will be taking certain examples. Okay. My first example is design NFA that accepts nothing. That accept nothing means everything should be rejected. इसका डीएफए हम लोगों ने बना रखा है ना, तो इसका डीएफए तो फटाफट बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं इसका डीएफए? स्टार्ट स्टेट, सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो अंडरलाइंग अल्फाबेट है दैट इज ए बी. इज इट? क्योंकि बिना अल्फाबेट के आप डीएफए या एनएफए कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते. यू मस्ट फर्स्ट नो द अल्फाबेट. ओके, सो on A and B, it is coming to itself and there is no final state. कोई final state नहीं है, so nothing will be accepted. आपकी जितनी भी states हैं उनमें से कोई भी state final state नहीं है, तो कुछ भी accept नहीं होगा. Everything will get rejected. So this is an DFA. But मेरे को क्या करना है? अब इसका NFA बनाना है. NFA कैसे बना सकता हूँ? Simply by designing only the necessary transitions. तो अब इसमें कोई transition necessary है ही नहीं. मुझे ना ए पे बताना है कहाँ जाएगा, ना बी पे बताना है. मैंने एक स्टेट बनाई, ये स्टार्ट स्टेट है, और चूंकि ये केवल स्टेट है इस एफए में और ये फाइनल स्टेट भी नहीं है, तो मेरा नल भी एक्सेप्ट नहीं होगा. चूंकि स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं, नल एक्सेप्ट नहीं होगा. अब ए बी या किसी भी और, मतलब मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लूँ ए बी के ऊपर, तो जो भी पहला लेटर होगा या तो ए होगा या बी होगा. सो फ्रॉम दिस स्टार्ट स्टेट ऑन लेटर ए वेयर आई विल गो, I don't know. I do not have any transitions defined on A. So on reading the first letter A, that particular string will crash over the machine. Okay, this machine will crash, or you can say
माई इनपुट विल क्रैश, इनपुट प्रोसेस नहीं हुआ पूरा, पहला लेटर ही रीड कर रहा हूँ और जो है उसी पे मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो मेरा लेटर प्रोसेस ही नहीं हुआ और मेरा इनपुट क्या हो गया, क्रैश हो गया। इसी तरह से अगर पहला लेटर बी है तब भी क्रैश होगा। तो अब मेरा आगे वर्ड ए हो, ए बी हो, बी ए हो, बी बी हो, या और कोई भी जो है 3 लेंथ का 4 लेंथ का, पहला लेटर रीड करते ही मेरा इनपुट क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी इनपुट इस पे क्या होगा, सक्सेसफुल होगा ही नहीं। इज इट? सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल गेट रिजेक्टेड। आप देखिए दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, बट इसमें क्या है, देखिए नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम है। इन जनरल मैंने जैसे आपसे कहा था, एनएफए में जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं नॉर्मली डीएफए के मुकाबले कम होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द रीजन व्हाई एनएफएज आर सिंपल टू डिजाइन। क्योंकि आपको जितनी कम चीजों के साथ डील करना है, जितने कम रिसोर्सेज के साथ डील करना है, जितना कम कॉम्प्लेक्स आपका नेटवर्क होगा, स्ट्रक्चर होगा, उतना आपका डिजाइन आसान होगा। दैट्स व्हाई एनएफएज आर इजियर देन डीएफएज। आई होप इट इज दिस एग्जांपल इज क्लियर। सर अगर सेल्फ लूप लगा देते इस पे तो कोई प्रॉब्लम होती? देखिए सेल्फ लूप लगाते ही डिजाइन क्या बन जाता, ये बन जाता। ठीक है, एंड इट हैज बिकम अ डीएफए। इज इट और नॉट? वैसे अगर देखा जाए तो भी सही होता, क्योंकि ईच डीएफए इज ऑल्सो एन एनएफए। क्यों एनएफए है? आप देखिए एनएफए में क्या है, फ्रॉम ईच स्टेट 0, 1 और मोर ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। ठीक है, इन केस ऑफ एनएफए। जबकि इन केस ऑफ डीएफए from each state only single transition is possible. Only single transition is possible. ना तो 0 नंबर ऑफ ट्रांजिशन अलाउड है, ना एक से ज्यादा ट्रांजिशन अलाउड है, केवल और केवल एक ट्रांजिशन अलाउड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डीएफए एनएफए का ही एक स्पेशल केस नहीं बन गया। डीएफए इज ए स्पेशल केस ऑफ एनएफए। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो एनएफए इज ए मोर जनरल मशीन, डीएफए इज ए मोर स्पेशलाइज्ड मशीन। इज इट? ओके, सो दैट्स व्हाई जो कुछ भी डीएफए है वो एनएफए तो है ही, लेकिन हर एनएफए डीएफए हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, सो यानी कि अगर मैं डीएफए भी बना देता हूं दैट इज ऑल्सो एन एनएफए, तो टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग, टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग। बट अगेन अगर मेरे को डीएफए ही बनाना था तो एनएफए की कोशिश करने की जरूरत क्या थी? फिर तो जब मुझे सारे ट्रांजिशन डिजाइन करने ही है तो फिर तो डीएफए बन गया। इज इट? एनएफए का फायदा क्या है कि आई डोंट हैव टू डिजाइन ऑल द ट्रांजिशंस, आई हैव टू मेक ए सिंपल डिजाइन विच इज मोर क्लोज टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, विच इज मोर क्लोज टू दी लैंग्वेज। जबकि पिछले एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि डीएफए जो है वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के उतना क्लोज हो जरूरी नहीं है। इन सम केसेस इट मे बी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल नॉट। इज इट? सो दैट्स व्हाई एनएफए में मेरा पर्पस क्या है कि मैं केवल जो नेसेसरी ट्रांजिशंस हैं वही डिजाइन करूं। अब नेसेसरी ट्रांजिशन से ऐसा मतलब नहीं है कि मैं हर एनएफए में खाली ऐसे ही छोड़ दूं, कुछ भी ना डिजाइन करूं। जो जरूरी है ट्रांजिशन वो डिजाइन करना पड़ेगा, जो गैर जरूरी है वो छोड़ सकते हैं। जैसे इस केस में ए बी गैर जरूरी था तो हमने इसको छोड़ दिया था। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, तो आपको उससे और क्लियर होगा। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, एनएफए दैट एक्सेप्ट ओनली द नल स्ट्रिंग, एक्सेप्ट ओनली नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग। इसका मैं एक एनएफए बनाता हूं, सिंपली जल्दी से बना दिया ये। विल इट वर्क और नॉट? देखिए स्टार्ट स्टेट है, बिकॉज स्टार्ट स्टेट इज फाइनल स्टेट, सो नल विल ऑलवेज गेट एक्सेप्टेड। इज इट? और बाकी कुछ भी इस पे रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? जिस कॉन्सेप्ट से मैंने यहां बताया था कि रिजेक्ट हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट से यहां भी रिजेक्ट होगा। जैसे ही पहला लेटर आएगा, क्योंकि मैंने कोई ट्रांजिशन बनाया ही नहीं है, तो पहला लेटर रीड करते ही मेरा इनपुट क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जो कि लेटर्स से बना हुआ है इस पे सक्सीड करेगा ही नहीं। केवल क्या सक्सीड करेगा? नल सक्सीड करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट स्टेट मेरी फाइनल स्टेट है। इज इट? तो दिस इज ओके। अब अगर ध्यान करिए, आपने इसके लिए डीएफए क्या बनाया था? इसके लिए आपने डीएफए कुछ ऐसा बनाया था, माइनस प्लस, उसके बाद ए बी को आप कहीं दूर ले गए थे। ठीक है, विच वाज ए नॉन फाइनल स्टेट, और इस स्टेट के बीच की ट्रांजिशन बनाने थे
ए बी, कुछ ऐसा डिजाइन आपने बनाया होगा, इससे कम, 2 स्टेट से कम आप बना ही नहीं सकते। इज इट और नॉट? क्लियर है? तो यहां चूंकि मुझे अगले किसी की आवश्यकता नहीं थी, मुझे सक्सेस के लिए जो चाहिए, और जितने से मेरा सक्सेस का काम कंप्लीट हो गया मैंने उतना ही बनाया, जितना सक्सेस जो आवश्यक नहीं था वो उसको मैंने छोड़ दिया। जबकि डीएफए में क्या था, मैं इसको खाली इतना नहीं छोड़ सकता था, मुझे ये बताना पड़ता कि इस स्टेट में अगर मुझे ए मिलेगा तो कहां जाना है, इस स्टेट में अगर बी मिलेगा तो कहां जाना है, जबकि एनएफए में ये नेसेसरी नहीं है बताना। इज इट? सो दैट्स व्हाई एनएफए इज सिंपलर देन डीएफए। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Okay, then come on example 3. NFA that accepts all these strings ending with B. Accept all strings ending with B. ठीक है, अब इसको मैं कैसे करता हूं? इसका सबसे पहले आप देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या लैंग्वेज के बारे में। लास्ट लेटर शुड बी बी, उससे पहले कुछ भी आए। इज इट क्लियर और नॉट? लास्ट लेटर इज बी, उससे पहले कुछ भी आए। अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो क्या बनाएंगे? a plus b asterisk b. It simply suggests me there should be a start state, there should be a start state, सक्सेस के लिए एक b चाहिए, एंड दिस b शुड बी द लास्ट b, दिस b शुड बी द लास्ट b। इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए कुछ भी नहीं बनाऊंगा। इससे पहले क्या है? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब a plus b asterisk, यानी कि a b. So this will be the NFA which will accept all the strings ending with B. So it is close to the understanding of the language or not? Now come on, it's DFA. अगर मैं इसका DFA बनाना होता तो भी आपने ऐसे ही बनाया होता, माइनस B आपको कहां ले जाएगा? सक्सेस पे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये सक्सेस फाइनल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस फाइनल स्टेट पे, सक्सेस पे पहुंचने के बाद बी मिल रहा है तो स्टिल योर स्ट्रिंग में बी एंडिंग विद बी। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल स्टे हियर। लेकिन अगर आपको ए मिल रहा है तो आपको इससे अवे जाना है। अवे कहाँ जाएंगे आप? स्टार्ट स्टेट पे जाएंगे। इज इट? इधर से अगर स्टार्ट स्टेट पे है, अगर बी मिलेगा तो सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ए मिलेगा तो वहीं स्टे करेंगे और इंतजार करेंगे कि शायद अगला लेटर बी मिल जाए और आपको सक्सेस पे ले जाए। सो आप देखिए, दिस इज द डीएफए, दिस इज द डीएफए, इट इज द डीएफए। सो डीएफए देखिए, डीएफए और लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों कितनी डिफरेंट है, जबकि एनएफए और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी सिमिलर है। और आप देखिए, इट इज इजियर टू डिजाइन। सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन आया, ए प्लस बी एस्टिक, एक लूप बनाया, ए प्लस बी एस्टिक के करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग के पाथ बनाया और सक्सेस फाइनल। क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं चाहिए तो इसके लिए इसके बाद कुछ भी नहीं बनाना है, जबकि डीएफए में आपको सारे ट्रांजिशंस डिजाइन करने हैं। सो अगेन, जो मैंने सबसे शुरू में आपसे पॉइंट किया था, व्हाई वी वांट एनएफएज, वी वांट एनएफएज बिकॉज दे आर मोर सक्सिएंट to the understanding of the language and they are easier to design. अब आप कहेंगे कि सर ने शुरू में बेवकूफ बना दिया, पहले डीएफए बनवा ली, सारी मेहनत करा ली, और अब जो है एनएफए बता रहे हैं कि भाई ये बनाना आसान है, इसको बना लो। इज इट और नॉट क्लास? Okay, so I think it is 5:30. So I am closing at this point. 2-3 more examples I wish to take, but because time limit is there, so these examples I will be discussing on the next lecture. And in that lecture, we will discuss also the method of converting NFA to DFA, because ultimately we want our machines to be deterministic. When we actually fabricate the things, ये तो design का part हो गया. When we actually fabricate the things, then we do not want non-deterministic machine. क्या आप कोई ऐसा फैन चाहेंगे कि आप पहला स्विच ऑन करें, अब वो ऑन होगा या नहीं होगा? इट इज अनडिसाइडेबल। पहला आपने स्विच ऑन किया, किसी बार तो ऑन हो गया, किसी बार ऑन नहीं हुआ। यू नेवर वांट दिस। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ वी डोंट वांट नॉन-डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स, वी वांट डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स। यानी कि अगर मैंने स्विच ऑन किया है तो इट शुड बी ऑन, अगर मैं स्विच ऑफ किया then it should go off. So determinism is required. So ultimately we want deterministic machines, but
non-deterministic machines, as we have seen that these are easier to design, so that's why we are discussing these. So अगर हम non-deterministic machines design करते हैं, so we need to ultimately convert these machines to the deterministic ones. So for that, as I have told you, that we have simple mechanical methods, simple algorithmic methods by which we can convert a non-deterministic machine to the deterministic one. So that we will be discussing on the next lecture. Thank you all. If you have any doubt, you can ask, otherwise I will close. Thank you, sir. Okay, thank you everyone.